कैट में 99.8, सैट में 99.94 और स्नैप में 99.96. So today we have with us someone who have cracked all three major MBA entrance examination and have more than 10 calls including Lucknow, Bangalore, Calcutta, FMS, what not. So I welcome you, Abhishek, here in this episode where we will be talking about your journey, how you made it, how you cracked it, and we will learn from your experiences and your message to our YouTube viewers. So first of all, welcome to this show, Talk with Toppers. So can you start with your, initial thing when it comes to when it came to your mind कि भाई चलो CAT करते हैं? First of all, thank you so much, sir, for having me here. And last year, my first thought about cracking CAT and going for an MBA came in Feb once. Okay. But then I didn't take it that seriously at that time, and I got busy with my work. I was happy with my job that I was doing, and I didn't really think too much about it, and I left it there. But then in October first week, which was quite late by the usual standards, but then I came back to you, and I had this solid idea in my mind that I want to go for an MBA this year itself, and I want to crack a good school, ideally one of the Blackie colleges, but then I was open to XLRI, FMS, and some of those other top schools as well. Right. Yeah. So Abhishek is working, with a very good company, and Abhishek is from IIT with electrical engineering. So there was a question whether he should go for MBA or not, right? Almost 4 years of 4.5 years of work experience, and already doing good in the job. Then February we met, because his elder brother is also my student now. He is with the government of India serving in income tax, and so he came with your father, right? Yeah, right. And we were discussing whether he should go for MBA or not. Yeah. It was in a dilemma कि भाई ठीक है, अच्छे कॉलेज में ब्लैकिस में मिल गया तो फायदा भी रहेगा, और अगर बिना ब्लैकिस के तो it doesn't make much sense. But still, he was not purely convinced कि भाई मेरे को MBA करना चाहिए. And finally again in October he called me up and said कि सर मेरे को CAT देना, मैंने CAT भरा है और इसको तोड़ना है. So with just 2.5 months, 45 days with CAT, I was like under pressure कि यार कोई बच्चा मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहा है, that late, whether we will be able to get good result or not. Yeah. But given his IIT background, his dedication, right, it was a bit sure that हम कर पाएंगे. So this video is specifically for all those who are from a good tier 1 institution in graduation, those who have already, with a good package and good job, and those who are targeting so-called top 10 colleges or blackists, right? So this video we will be talking about what and how a person with such a profile should be, aiming for MBA, what should be done, what should not be. So Abhishek, tell me what was your 45-day plan? Let us say कि कोई बंदा शुरू करता है last 3 months में सोचता है कि यार मैं MBA करना चाहता हूँ, तो what was your 45-day plan? Yeah. So sir, initially the most important thing was to get brushed with the old concepts again. Honestly, quant के सारे concepts I knew very well due to my JEE background. And once I went through a few of the lectures, I realized the main thing that was lacking was the practice and to understand what would be my strategy in the CAT exam. That was the most important thing. So then I shifted my strategy from, watching lectures to mainly about practice and giving mocks. I think in the last 45 days, I must have given like 55 mocks in total and, analyzed them thoroughly so that on the day of the exam, I was pretty clear with my strategy on what to do in each section. Right. So out of 3 sections, which one was like your pain area, डर लग रहा था जिससे इसका क्या होगा क्या नहीं होगा? Sir, डर थोड़ा DILR से था. I was very out of touch from DILR and mocks में मेरे DILR के scores were like very up and down. किसी mocks में single digit score आ रहे हैं, किसी में 40-50 आ रहे हैं. तो I was very uncertain even one day before CAT
कि मेरा DILR कैसे जाए। राइट। तो DILR तो डेफिनेटली सेक्शन है जो कि नॉन प्रोडिक्टेबल होता है। इनफैक्ट CAT 23 का अगर हम DILR देखें बहुत टफ था, एक सेट होना भी बड़ी मुश्किल बात थी, और ये 24 में लोगों ने भाई फोड़ा है, लाइक एनीथिंग पीपल हैव गॉट एज हाई एज 60 मार्क्स आल्सो इन DILR, राइट। एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी दैट यू फॉलोड फॉर मॉक्स? फॉर DILR या इन जनरल? इन जनरल मॉक्स क्या कुछ ऐसा रहता है कि भाई ऐसा मॉक देना चाहिए, ये मॉक बेनिफिट रहता है ऐसे देने से? The most important thing I learned from the mocks was yes, no, let it go. Because CAT का स्पेशलिटी है कि there will be few questions which are there just कि आपको स्टक कराने के लिए, आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए. That is the most important thing to learn from mocks कि किस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, ईगो साइड पे रख के उसको छोड़ना है. That was the most important thing to learn. So yes, no, let it go. What we learn and what we apply and what we ऑलवेज एडवोकेट कि भाई ये अगर आपको करना आ गया तो आधा मैनेजमेंट आपका हो गया, बिकॉज इन लाइफ ऑल्सो यू नीड टू लर्न वेयर टू से नो, राइट? सो कमिंग टू योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, राइट, प्रोबेबली योर इंटरव्यू वुड हैव बीन मोर ऑन वर्कएक्स, राइट? जो भी जितने भी लोग वर्कएक्स पे रहते हैं उनका मेजरली इंटरव्यू वर्कएक्स पे होता है. मैं थोड़ा सा पेन एरिया टच करना चाहूँगा, राइट? यू गॉट 99.94 in that, right? You told your interview also went very well. बहुत तोड़ दिया तुमने, right? But you got straight rejection from Jamshedpur. Delhi में very large wait list, मतलब very large, 600 something. मतलब क्या लग रहा है यार कि 99.96 IIT Delhi, electrical engineer, very good sales role, right? You have a lot of good vibes about your interview process. सब अच्छा गया और स्ट्रेट वे रिजेक्शन. सर ऑनेस्टली इवन नाउ आई एम नॉट श्योर कि क्या एग्जैक्ट रीजन था रिजेक्शन का, बट देन वन थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज कि आई हैव टॉक्ड टू माय पीयर्स एज वेल जिन्होंने इस बार एक्सेल के इंटरव्यूज दिए थे. दे आर प्रोबेबली प्रेफर्ड यंगर कैंडिडेट्स ओवर जिनका 4-5 साल का एक्सपीरियंस था. आई अमंग माई कम्युनिटी आई कांट फाइंड एनीवन जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो और उन्होंने सिलेक्ट किया हो एक्सेलराइज जमशेदपुर ने. आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन इट दिस टाइम. उन्होंने ज्यादा वर्कएक्स वाले लोगों को दिल्ली वाले कैंपस में भेज दिया, जमशेदपुर के लिए सिलेक्ट नहीं किया. राइट, दैट्स द ओनली दैट कुड बी द रीजन. सो बच्चा लोग, मैं एज ए मेंटर, एज ए टीचर आपको ये समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, वो जो 10 मिनट 15 मिनट का फ्रेम होता है, आप अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, सामने वाला किस फ्रेम ऑफ माइंड में बैठा है आपको नहीं पता होता है. सेकेंड थिंग, said unsaid, there are some rules that they follow. Sometimes we fall into that criteria, sometimes we don't. It's not about that you are not suitable for that institute, you are not made for, या आप में कुछ कमी रह गई है, राइट? तो बहुत सारे मैंने बच्चों को डिसअपॉइंट होते देखा है. तो देखो भाई, ऐसा है कि एक कॉलेज की कॉल तो आती नहीं है हमारे पास. हमारे पास वी हैड plenty of calls in that same bracket, so you will be able to make it to one, राइट? नो डाउट, जैसे अभिषेक ने बताया कि भाई एक्सेलराई का जब नहीं हुआ तो बहुत दुख हुआ. वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट आई रियलाइज कि देखो एक ही सीट चाहिए मुझे, एक ही सीट चाहिए और एक में ही करना है. टियर 1 10 बार ऑप्शंस है, तो इट्स फाइन, लगे रहो और कीप कंटिन्यूइंग. कई बार जो ये यंग कैंडिडेट है ना कॉलेज में, ये करते हैं कि जरूरी नहीं होता कि जहां भी आप प्रपोज करें आपकी बात बनी जाए, और एंड ऑफ द डे आपको, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, राइट, बट स्टिल है ना, आज का ज़माना चेंज हो गया है, तो स्टिल यू वुड वांट वन गुड कॉलेज जो आपको सिलेक्ट करे, आप जिसको सिलेक्ट करे. तो डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वैसे तो खैर रिजल्ट बहुत बाद में आते हैं, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं भी गया किसी उसका, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड. कई बार उल्टा होता है, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, सिलेक्शन हो जाता है, और जहाँ पे इंटरव्यू आपको लगता है अच्छा गया वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता. वो मेरे लिए भी था. इफ आई टेल माय एक्सपीरियंस, मेरा एक्सेलराई बेस्ट इंटरव्यू था, रिजेक्शन. मेरा IIFT और लखनऊ वाज सो ओनली, दोनों में डायरेक्ट कन्वर्ट. तो यू नेवर नो, राइट? तो आपका IIFT हो गया है, और लखनऊ हो गया है, कलकत्ता में 13 वेट लिस्ट है, तो वो भी फिंगर्स क्रॉस हो जाना चाहिए, राइट? ओके. और इसके अलावा आपका FMS में भी वेटिंग लिस्ट है 229 समथिंग, सो बॉर्डर लाइन होगा, आई थिंक बॉर्डर लाइन होगा, क्योंकि FMS बहुत कैंडिडेट बुलाता है यार. FMS में आप देखेंगे कि अराउंड 6,000-7,000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, राइट? एंड दे हैव मे बी 200 सीट्स. व्हाट जनरल की आई थिंक इतनी सीट्स 100 to 180 और 200 के पास में सीट्स हैं. तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट में से
to get a click. I don't think it's an easy game, boys. Please don't get disheartened if you are not getting selected in interview process, right? और एग्जाम के लिए भी यही फंडा है. कई बार क्या होता है, उस दिन बल्ला नहीं चलता, कैट वाले दिन आपकी कहानी नहीं बैठती सही, ठीक है, तो डिसऑर्डर नहीं होना. कैट अगर तैयारी की है ना, न्यूज़ैट निकलेगा, स्नैप निकलेगा, IFT निकलेगा, मतलब आजकल IFT नहीं होता, एनमैट निकलेगा, राइट? तो अपने जो आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जैसे आपने बताया मेरा एक्सेलर का बेस्ट हुआ, तो उसके कुछ ग्लिम्स देना चाहेंगे आप ऑफ योर एक्सेलर आई इंटरव्यू? सर उसमें प्राइमरली द इंटरव्यू वाज रिवॉल्विंग अराउंड माय वर्क एक्सपीरियंस. ऐसा नहीं था कि इंटरव्यू का माहौल बहुत चिल था. द पैनल ट्राइड टू ग्रिल मी अ लॉट, बट आई हैड कॉन्फिडेंस कि आई हैव डन अ लॉट ऑफ सॉलिड ग्राउंड्स ऑन ग्राउंड वर्क किया मैंने अपने काम में. तो आई न्यू ऑल द नंबर्स प्रॉपरली कि क्या मार्केट साइज है, क्या हमारा बिजनेस मॉडल है, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन ऑल माय आंसर्स, व्हिच इज व्हाई आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ. राइट. अच्छा, जो तुम्हारा गंदा इंटरव्यू हुआ, जैसे कि तुम बोल रहे हो कि IFT का अच्छा नहीं गया, सो व्हाट वाज लाइक, क्या कहाँ अटके आप? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू का लेंथ ही बहुत छोटा था, विच इज इन इटसेल्फ आई थिंक नॉट अ ग्रेट सिग्नल. अगर आपका इंटरव्यू बाकियों से थोड़ा कम टाइम चल रहा है, इट्स नॉट रियली अ गुड सिग्नल. आपका कितनी देर चला? आई हार्डली 8-9 मिनट चला. बाकी लोगों का 13-14-15 मिनट. तो ये भी कई बार मैटर करता है यार कि वो कितना के इंटरेस्टेड है आपको लेने में, या आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, बट कुछ लोग कहते हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा हाई परसेंटाइल होता है, या उनको लगता है कि यार ये हमारे पास आने वाला नहीं है, तो वो एवरेज से नंबर देके उसको भी निकाल देते हैं. मतलब बिकॉज कैंडिडेट जो इंटरव्यू दे रहा है उसको सिर्फ एक ही इंटरव्यू देना है, राइट? और जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है, बस लिटरली बताता हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ. व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट एंड इवन एट इंस्टीट्यूट आल्सो व्हेन वी टेक इंटरव्यू, 3-4 इंटरव्यू तक तो हमें मजा आता है इंटरव्यू लेने में. 5वें-6ठे इंटरव्यू से होता है कि यार बस मोटा मोटा देखो और काम निपटाओ. एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. और इस बार नार्सी मुंजे ने AI इंटरव्यू लिया है, तो we may say this thing, see this thing in future that there may be AI interviews, that may be the future of interviews for MBA. मेरा कैलकाटा के टाइम पे उल्टा था. मोस्ट ऑफ माय पैनल हैड इंटरव्यूज फ्रॉम 18 to 20 मिनट्स. माय इंटरव्यू लास्टेड फॉर 38 मिनट्स इन कैलकाटा. कन्वर्ट फिर भी नहीं हुआ. कन्वर्ट मतलब बॉर्डरलाइन वेट लिस्ट है, बट देन दैट इज अ गुड सिग्नल इफ द इंटरव्यू इज लास्टिंग दैट लॉन्ग कि दे आर लुकिंग फॉर रीजंस टू सिलेक्ट यू. सो व्हाट वाज द मेन थिंग जिस पे वो तुम्हें यार 38 मिनट उन्होंने तुम्हारे इंटरेक्ट किया? कैलकाटा का टिपिकल रहता है कि दे विल आस्क यू टू सॉल्व वन मैथ या स्टैट का प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इंटरव्यू. सो दे आस्क्ड मी टू figure out the trend. They gave me 10 data points and they asked me to figure out the trend line right there and then itself. And उस problem पे we spent I think 18 to 19 minutes on that particular problem. Cross questioning होती रही कि आगे कैसे होगा. And finally when I was able to arrive at the answer, I was थोड़ा confident कि this was good. Yeah. उसके अलावा 5-10 मिनट क्वेश्चनिंग हुआ मेरे वर्क एक्स पे. सिंस आई एम अ टीम लीड राइट नाउ कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज डू आई लुक फॉर इन पीपल एंड उसके अराउंड हाउ आर माय टारगेट्स डिफाइंड, थोड़ा उस पे क्वेश्चंस थे. थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है अभिषेक, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA entrance examination, your job is also going on, right? So how do you manage that time? मतलब मैं ये अक्सर देखता हूँ कि बच्चे कहते हैं कि हम बता नहीं सकते अपनी कंपनी में, अगर बताएंगे तो पंगा हो जाएगा. और ये ट्रूथ है कि कितने परसेंटेज लोग जो हैं वो वर्क एक्स वाले होते हैं. मतलब कंपनीज ये प्रेफर करती हैं कि भाई बंदा वर्क एक्स, मतलब कॉलेजेस प्रेफर करते हैं कि भाई वर्क एक्स वाला हो. तो 40-50% जो सिलेक्शन होता है वो वर्क एक्स वालों का होता है, राइट? हाउ डू यू मैनेज? वर यू एबल टू टेल टू योर? यस सर, फॉर दैट आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय करंट कंपनी एंड मैनेजमेंट. डे 1 पे मैंने बता दिया था कि राइट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड दे वर वेरी सपोर्टिव. It was never an issue in my company कि I might be leaving at the end of May or June, so very supportive in that regard. Right. So do you recommend everyone to go up front and tell, or hide, or not what? Really, it would depend on the organization as well. I was lucky enough to have a kind of a manager who I was working with who was very supportive in that, but not all people are like that. So right. तो की यहाँ पे क्या है कि मैनेजर से आपसी कितनी पड़ती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मैनेजर के साथ आपकी कितनी पड़ती है. चलिए, लास्ट क्वेश्चन, योर रिकमेंडेशन, योर thoughts for people who are preparing for CAT this year, especially those who have a good amount of work experience or who are already having अच्छा CTC है, why they should go for MBA, and if they are going, what are the things they need to take care?
The why MBA is very important. I could have gone for an MBA last year, उससे 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले भी. The reason I did not go for an MBA was कि मेरे अंदर से I did not have any strong reason for why MBA. I was doing well at my job and I was satisfied with it. This year I had a very strong feeling कि मेरे को अपना profile switch करना था. I wanted to go into management consulting and the route to go into management consulting for me, the best option was an MBA. क्योंकि off campus वो बहुत मुश्किल है crack करना MBB type के roles को. So that was my very strong reason for going for an MBA. I would recommend कि each one of you should find their reason for why MBA. Why MBA? Because that will help you a lot in your interview process as well. You need to have very solid reasoning behind that why you're going for an MBA. Great. In the previous interviews also it came very strongly that why MBA is to be very much clear to you and it has to be very personal to you. Yeah. Don't give the standard answers Absolutely. of this thing. अब लोग बोलते हैं कि JD इंटरव्यू प्रोसेस के लिए दे नीड टू प्रिपेयर अ लॉट ऑल दीस आंसर्स कि व्हाई MBA, व्हाई आर यू अ गुड कैंडिडेट. आई फील अगर अंदर से इफ यू हैव अ गुड रीजन विद इन यू एंड यू नो योरसेल्फ वेरी वेल, इसके लिए कुछ प्रिपरेशन ऐसा चाहिए नहीं है. If you are talking the truth in the interviewer can also gauge that. Right. Yeah, which holds you in very good stead. Great, great. So, okay. So, Abhishek, thank you very much for joining here, right? And I wish you all the very best for IIM Calcutta. Thank you. Hopefully, in coming week or so, you will get a, IIM Calcutta ka, call, final call. Yes, sir. And next 2 years down the line, we'd love to interview you again as an alumnus of one of the IIMs, right? So wish you all the very best and thanks for coming here. Congrats to you and your family for making them proud and cracking this spec. Thank you so much, sir. Thank you so much for all the efforts that you and the entire team at Mission Cat put to ensure that in each phase of the MBA selection process, I could put my best foot forward. I mean, as a student, I can see very well how much of an effort you and your entire team put for the students. I really thank you for that. So great. Yeah. So it's always an endeavor to help students to get into that. The SOGO 100 batch, which I take early in the morning. अच्छा ये बताओ चलो. Anyhow, it is post interview. तो सुबह 5:30 बजे उठना, how comfortable it was, how challenging it was, or it was a torture? नहीं सर, थोड़ा चैलेंजिंग पहले 1-2 दिन के लिए है, बट ऑनेस्टली आई विश मैंने बैच पहले ज्वाइन किया होता ताकि वो मेरी हैबिट और भी स्ट्रांग हो जाती. बिकॉज इट्स नथिंग लाइक इट टू वेक अप अर्ली. इट्स लाइक अगर आप लेट उठते हो तो यू हैव लेसर नंबर ऑफ आवर्स इन द डे देन इफ यू आर वेकिंग अप अर्ली. तो आई कांट रिकमेंड इट हाईली इनफ कि दैट 5:30 AM वाली जो क्लास थी. चलो ठीक है. गुड गाइज. ओके, बाय बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.